غزہ فلسطین کا مسئلہ ہے، قبلہ اول کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر کچھ باتیں کروں گا، اللہ کرے یہ باتیں میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ جب سے یہ مسئلہ بنا ہے، یہ قوم یہودی جو تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان میں سے ایک یہود تھا، یہودا جس کو کہتے تھے، یہ انہی کی نسل چلی آ رہی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی نکال کر دیکھیں گے تو ان کی زندگی میں بھی یہی قوم آپ کو نظر آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو فرعون سے نکال کر لے کر گئے، اللہ نے فرعون سے ان کو آزادی دی، پانیوں کو اللہ نے پل بنا دیا، یہ قوم ساری گزر گئی۔ جب فرعون کی فوجیں آئیں تو اللہ نے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا، فرعون کی فوجیں اسی پانی میں غرق ہو گئیں۔ اب جب یہ یہاں سے نکلے تو انہوں نے جا کر موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی، موسیٰ پانی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے، بڑے پیارے پیغمبر تھے۔ کہا اللہ پانی، کہا موسیٰ اپنا عصا پتھر پر مارو، پتھر پر مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ 12 ان کے قبائل تھے، ہر قبائل کا علیحدہ چشمہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چلنا شروع ہو گیا۔ منو سلوہ آتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے اللہ سے ملاقات کے لیے۔ اللہ نے مشن دیا، موسیٰ قبلہ اول کو جا کر فتح کرو۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، یہی قوم تھی، آ کر کہا اللہ نے مجھے قبلہ اول کی آزادی کے لیے لڑنے کا کہا ہے۔ تو آگے سے انہوں نے کیا کہا موسیٰ تو لڑ، تیرا رب لڑے، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے ہم کیوں جائیں گے لڑنے کے لیے؟ اور انہوں نے بچڑے کی پوجا بعد میں شروع کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان، اللہ سے کہا اللہ میں نے ان کی جو تربیت کر سکتا تھا، جو آپ نے حکم دیا میں نے کیا، اب تو یہ بالکل ہی بات ماننے سے انکاری ہو گئے۔ اللہ نے کہا موسیٰ تیرا کام ختم ہو گیا، تو چلا جا۔ اللہ نے ان کی حس ختم کر دی۔ یہ چلتے تھے صبح و شام کو، پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قبلہ اول آزاد نہیں ہوا۔ یوشع بن نون کے دور میں، یہ بھی اللہ کے نبی پیغمبر تھے، ان کے دور میں پہلی دفعہ قبلہ اول فتح ہوا ہے۔ اس کے بعد عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا۔ ڈیلیگیشن گیا، ان کافروں کی سمجھ میں نہ آیا، انہوں نے چابیاں نہ دی، پیغام بھیجا اس ڈیلیگیشن نے پیچھے کہ یہ چابیاں نہیں دے رہے۔ قاصد آیا، امیر المومنین نے اپنے ساتھ ایک غلام لیا، اونٹ پہ سوار ہوئے چلے گئے۔ اب اونٹ ایک ہی تھا، سواریاں 2 تھی۔ کچھ وقت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ اونٹ کے اوپر سوار ہوتے تھے، کچھ وقت غلام ہوتا تھا۔ اب جب قبلہ اول کا جہاں جا کر ان کے قبلہ اول میں جانا تھا، جس جگہ پہ اس علاقے میں کیچڑ بنتا تھا، تو وقت تھا، باری تھی امیر المومنین کی کوہان پکڑنے کی اور غلام کے اوپر بیٹھنے کی۔ غلام اوپر تھا، امیر المومنین نیچے تھے، جوتے بغل میں تھے اور چل رہے تھے۔ ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ اوپر والے امیر المومنین ہیں۔ نیچے سے صحابہ کرام نے کہا امیر المومنین وہ ہیں جو نیچے، اوپر غلام ہے۔ انہوں نے سب کچھ دیکھا، دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا جو ہماری کتابوں میں قبلہ اول کے فاتح کی نشانیاں علامتیں وہ پوری ہیں، چابیاں پیش کر دی۔ اس کے بعد قبلہ اول جس بندے نے آزاد کروایا ہے، دبلا پتلا سا نوجوان ہے، اور اس نے اپنی فوج میں یہ ایک سپاہی کی حیثیت سے آیا ہے، وہاں سے اپنی ذہانت، اپنی فطانت، اپنی دلیری، اپنی سمجھداری، بردباری کی وجہ سے ترقی کرتے کرتے یہ سپہ سالار بنا ہے فوج کا۔ سپہ سالار جب یہ بنا ہے تو راتوں کو سوتا نہیں تھا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا رات کو آپ سوتے نہیں ہو؟ کہا قبلہ اول کفر کے تسلط میں ہو اور میں رات کو سو جاؤں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ مورخ اس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی لکھتا ہے۔ اس اللہ کے بندے نے پھر اس کے لیے پلاننگ کی،
अपनी पूरी फौज में से इसने 12,500 नौजवान उठाए, उनको उठाकर सहराओं में, डेजर्ट एरिया में ले गया। वहां जाकर एक झाड़ी काश्त करवाई जिसको पेट्रोल की तरह आग लगती थी। इसने उस टेम्परेचर में अपने नौजवानों से यह बात कही, इसने कहा अपनी मर्जी का घोड़ा ले लो, अपनी मर्जी की जिरा, अपनी मर्जी की तलवार लो, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी यह नहीं सुनेगा कि मैं लड़ना चाहता था, मेरा घोड़ा काम नहीं कर रहा था, मैं लड़ना चाहता था, मेरे पास तलवार ठीक नहीं थी, अपनी मर्जी का साजो सामान लो, किबला अव्वल आजाद करवाना है। सलाहुद्दीन अय्यूबी इनको उस टेम्परेचर में तरबियत करवा रहा था। तो फिर क्या हुआ, रिचर्ड इसके मुकाबले में था, 6.5 लाख फौज थी। मुसलमानों जरा गौर करना इस बात पर, 6.5 लाख फौज है, मुकाबले में रिचर्ड है। उसने पैगाम भेजा, सलाहुद्दीन मेरी बेटी की शादी है। शादी बहाना था, अपने हरबो जरब दिखाना मकसद था, अपने जंगी आलात, अपनी जिद्दत, अपनी फौज, अपनी ताकत, उसका मुजाहरा करना मकसद था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक मुजाहिद को साथ लिया, कुछ साजो सामान लिया, बेटी के लिए तोहफे तहाइफ, इसके महल्लों में चले गए। जब इसके महल्लों में गए तो अभी सलाहुद्दीन बैठा था, इसने वही करतब करना शुरू कर दिए जो हमारे वुज़रा, हमारे सुदूर और हमारे इस्लामी मुल्कों के सुदूर के साथ होता है। जब ये कुफर बुलाता है तो फिर ये सारे वो काम करते हैं, डराने के लिए, धमकाने के लिए। ये हमारा अपाची है, ये चिन्योक है, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये नाइट गागल है, ये B-52 है, ये 85,000 फुट की बुलंदी से पिन पॉइंट पे निशाना लगाता है, ये डेजी कटर है, इसमें 150 टन बारूद होता है। ये सारी चीजें ये डराते हैं मुसलमान हुक्मरानों को। सलाहुद्दीन अय्यूबी बैठा था, उठा, इसकी मजलिस में उसने एक दुपट्टा करेब का फजा में लहराया और अपनी तलवार की धार से दरमियान से काट दिया। यह बहुत बड़ा काम था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, रिचर्ड से कोई इस तरह का जवान है तेरे पास? कहने लगा नहीं। कहा, रिचर्ड मैं तेरी बेटी की शादी में आया हूं, बेटियां सबकी सांझी होती हैं, मैं तेरी फौज के करतब देखने नहीं आया। फैसला मैदान करेंगे, मैदानों में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मैदानों में आओ, फिर देखते क्या बनता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कहकर चला गया। रिचर्ड ने अपने लश्कर को चढ़ाना शुरू कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो आगे मार के हो रहे थे उनको उसने कहा पीछे हटना शुरू हो जाओ। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के लोग पीछे हटना शुरू हुए तो उन्होंने समझ लिया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी हार गया है, हार गया, शिकस्त खा रहा है। वो जो खोने किदरों में, खुंजों में छुपे हुए थे वो भी निकल आए। 6.5 लाख फौज को सलाहुद्दीन अय्यूबी उस मैदान में ले गया जिसमें उसने झाड़ी काश्त करवाई थी। और एक बात, अगर यहां कोई अस्करी हवाले से बंदा बैठा हो समझता है, आप जब अपनी पसंदीदा जगह पे अपने दुश्मन को लड़ने के लिए ले आते हैं तो 70% जंग आप जीत चुके होते हैं, 30% का फैसला बाकी होता है, 70% जंग आपके हक में होती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी जब उस मैदान में ले आया, चारों तरफ से घेर लिया 6.5 लाख फौज को। दोपहर 12 बजे ऊपर से सूरज आग बरसा रहा था, नीचे से रेत तपी हुई थी। उधर से उसने अपने मुजाहिदीन को कहा झाड़ियों को आग लगा दो। बिलीव करे, मुअर्रख लिखता है 6.5 लाख में से 5.5 लाख सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मार दी, 50,000 दौड़ गए, 50,000 जख्मी हो गया, कैदी हो गए और किबला अव्वल आजाद हो गया। आज 57 मुल्क है मुसलमानों के, लाशें संभाली नहीं जा रही, छोटे छोटे बच्चे हैं, बोटियां इकट्ठी करके हम उनको गठलियां बांध के दफना रहे हैं। रोडों के दाएं बाएं लाशें बिखरी पड़ी हैं। लोग अपने प्यारों की कब्रिस्तानों में नंबर के इंतजार में कि हमारे प्यारों का नंबर कब लगेगा, उसको दफन कब किया जाएगा। और कुछ लाशें ऐसी पड़ी हैं जिनकी पूरी पूरी फैमिलियां शहीद हो गई हैं, कुछ नहीं बचा, उनका कोई इंतजार करने वाला पीछे नहीं है। इस प्रोसेस से हम गुजरे, इन हालात से हम गुजरे। और मुझे वो प्यूटन का बयान याद आ गया, ये शुमाली कोरिया का वजीर आजम है या सदर है, वो कहता मैं हैरान हूं
57 मुल्क है मुसलमानों के, और ये इनके किबले अव्वल का मसला है, उसकी आजादी का मसला है, ये मुसलमानों का मसला है, और ये 57 मुल्क मजम्मत से आगे कोई बात नहीं कर रहे कि हम मजम्मत करते। वो कहता अगर मेरे मुल्क का ये मसला होता तो मैं अपने सारे कीमियाई, अपने एटमी हथियार इनके ऊपर आजमाता। आज हम कहां खड़े हैं? और ये यहूदी नस्ल, ये इतनी गंदी नस्ल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे खंदक में इन्होंने क्या किया था? जब मेरे नबी चारों तरफ से घिर चुके थे तो इन्होंने गद्दारी कर दी, अहद शुकनी कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस असाब शिकन जंग से, कितने दिनों की जंग थी, कितने हफ्तों की थी। अल्लाह के नबी घर जाकर जंग का लिबास उतारा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, कहा अल्लाह के नबी फरिश्तों ने जंग का लिबास नहीं उतारा। इन सारे ये जितने यहूदी हैं इनके कबाइल का मुहासरा करो। अल्लाह के नबी चले गए, कहा जोहर या असर की नमाज वहां अदा की जाएगी। सहाबा कराम पहुंच गए, इनका क्रैकडाउन कर लिया गया, घेरा कर लिया गया। अब इनको पता था कि हमने अहद शिकनी की है, मुसलमानों पर अल्लाह की मदद आई। अल्लाह ने तूफान आंधी इतनी चलाई कि कुफर के जानवर बिदक गए, खेमे उखड़ गए, जो कुछ लेकर आए थे खाने पीने का सामान सारा भीग गया। ये रात को छोड़कर दौड़ गए। अब इनका नंबर लग गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये यहूदी आ गया, कहने लगे साद से हमारा फैसला करवा दो रजी अल्लाह ताला अन्हु से। साद रजी अल्लाह ताला अन्हु के जंगे खंदक में गर्दन में इस जगह पे तीर लगा था और उन्होंने दुआ की थी, अल्लाह मुझे यहूदियों का अंजाम दिखाए बगैर मौत ना देना। साद को लाया गया। साद को अल्लाह के नबी ने कहा साद इनका फैसला कर दो। साद ने यहूदियों से कहा मैं जो फैसला करूंगा कबूल है? कहा हाँ कबूल है। साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी की मौजूदगी में फैसला किया था। कहा अल्लाह के नबी इनकी औरतों को लौंडियां बना लो, इनके बच्चों को गुलाम बना लो, इनके जितने मर्द हैं उनकी गर्दनें तन से जुदा कर दो। साद ने यह फैसला सुनाया रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साद जो तूने जमीन पर इनके लिए फैसला किया, आसमानों वाले रब ने भी इनके लिए यही फैसला किया। यह इतनी गंदी नस्ल है। वो हिटलर ने जब इनको मारा था ना तो उसने थोड़े से छोड़े थे, साथ उसने ये बात कही थी, उसने कहा मैं चाहता तो मैं इनको भी कत्ल कर देता, इनको भी मार देता। मैं तुम्हें दिखाने के लिए छोड़ रहा हूं कि ये लोग कैसे हैं, ताकि बाद में आने वाले लोग मुझे गलत ना कहें, इनको समझ लें कि ये क्या है। आज दुनिया में इंतशार जंगी असूलों की खिलाफ वर्जी, हॉस्पिटलों में छोटे छोटे बच्चों का इलाज हो रहा है और उसके ऊपर बमबारी हो रही है। पूरे पूरे हॉस्पिटल खत्म कर दिए गए। अब हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल बचा है, वो भी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है। इस तरह सड़कों के ऊपर बगैर सुन्न किए ऑपरेट हो रहे हैं। कभी आप गौर करें इसके ऊपर, कभी सोचें आज हम कहां खड़े और इनका इलाज क्या था। उम्मत मुस्लिमा अगर खड़ी हो जाती, हम तो अभी अपने मसाइल में उलझे हुए हैं। हमारे महंगाई के मसाइल, हमारे फलां मसाइल, हम नहीं खड़े हो सकते। ये तो कबूल करने जा रहे थे, ये सारे कबूल करने जा रहे थे इसराइल को। इसके पीछे बड़ा लंबा प्लान है, वक्त नहीं है मैं वो बयान करूं, लेकिन भाइयों कुछ हौसले की बातें हैं। मैं सिर्फ आपको डीमराल नहीं, मैं मजालम देखे, शहादतों के ऊपर दुख, गम, सदमा, परेशानी, तकलीफ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या बयान करूं, अल्फाज खत्म हो जाते हैं। लेकिन मैं ये बात करता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन ओहद में जख्मी हो गए, खौद सर में घुस गया, मेरे नबी ने गार में जाकर पनाह ली, दंदान मुबारक शहीद हो चुके थे। अल्लाह के नबी गार में पनाह ली। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा टाट जलाकर अल्लाह के नबी के जख्मों में राख भर रही थी कि खून रुक जाए मेरे बाबा का। और अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुआ था, यह ओहद पहाड़ की उस जानब से आया, आकर कहने लगा खत्ताब का बेटा उमर जिंदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खामोश रहो। कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह जिंदा है। कहा खामोश रहो। फिर उसने एक बात की, उसने कहा मुसलमानों तुमने हमारे 70 कत्ल किए थे बदर में,
हमने तुम्हारे 70 जख्मी कर दिए, तुमने हमारे इतने कैदी किए थे, हमने तुम्हारे इतने शहीद कर दिए, बदले बराबर हो गए, हुबल जिंदाबाद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर से कहा, उमर जवाब दो। कहा, अल्लाह के नबी ये जितने शहीद और जितने जख्मियों का कह रहा है ये बात ऐसे ही है। कहा, उमर इसको जवाब दो, जो तुम्हारे बदर में मरे थे वो जन्नत में गए, जो हमारे ओहद में शहीद हुए वो जन्नत में गए, बदले कैसे बराबर हो गए? शहादते इस्लाम में नुकसान नहीं है। मेरे नबी आखिरी दम तक सुम्मा हुआ सुम्मा उक्तल, सुम्मा हुआ सुम्मा उक्तल दुआएं करते रहे, अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे, अल्लाह मुझे फिर जिंदगी दे, मैं फिर तेरे रास्ते में कट जाऊं। ये मेरे नबी की दुआएं थी। शहादतें नुकसान नहीं है। लेकिन भाइयों ये बात जरा गौर करें, आपने दुनिया में ऐसी जंगें नहीं पड़ी होंगी, अगर आप इसका बगौर जायजा ले रहे हैं, अगर आप इस जंग को करीब से पढ़ रहे हैं तो जरा गौर कीजिए। पहले दिन जिस दिन कार्रवाई शुरू हुई थी, पहले दिन, उस दिन 1300 यहूदी फौजी मरा था। और जंगों की तारीख में एक हलचल मच गई थी। वो क्या? आपकी इंडिया से 3 जंगें हुई हैं, इन 3 जंगों में कोई ब्रिगेडियर रैंक भी शहीद नहीं है। यह बात, इसके ऊपर गौर करें, आप देख लें जंगें निकाल के। और यह पहले दिन की जंग में आपके भाइयों बेटों ने वहां इनकी छोनियों से हाजिर सर्विस जर्नैल उठाकर मोटरसाइकिलों पे लेके गए हैं, वो अभी भी उनके पास है। 1300 फौजी इनका मरा है। हमारे तो मीडिया से अब फलस्तीन वैसे गायब होता जा रहा है। हम तो, हमारा सारा बिकाऊ मीडिया कहां दिखा रहे? आज कहां है फलस्तीन? उनके बच्चों की शहादतें दुनिया में बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कैदी उन्होंने भी छोड़े, कैदी इन्होंने भी छोड़े। फख्र करो अपने बेटों पर जिन्होंने कैदी छोड़े और वो मुस्कुराते जा रहे थे। और उन्होंने जो यहूदियों ने छोड़े, वो नौजवान को उठाकर देखो जो कहता मेरा बाजू तोड़ दिया, मेरी उंगलियां टूटी हुई हैं, मेरे सामने बुजुर्गों को ठुड्डे मार मार के इन्होंने शहीद कर दिया। कहने लगा ये तो पट्टी भी नहीं करते थे, ये मुझे रेड क्रॉस वाले लेने के लिए गए हैं तो उन्होंने पट्टी की है, प्लास्टर किया, वगरना इन्होंने बाजू तोड़ के पट्टियां भी नहीं की। और कितने लोग इन्होंने जेलों में शहीद कर दिए। और उधर वो लेटर जिसने खलबली मचा दी थी पूरी दुनिया के ईवानों में, वो औरत लेटर लिखती है, उसकी बेटी और वो ये कैद में थे, उसने लेटर लिखा, उसने कहा मैं इस बेटी की मां और इसका बाप भी शायद इसका इस तरह ख्याल ना रख सकते जिस तरह इन मुजाहिदीन ने मेरी बेटी का ख्याल रखा है। ये मैदान है। हम तो मैदानों में भी अपने जंगी असूलों को हमने छोड़ा नहीं है। और ये जुल्म कर रहे, इनके जुल्म के ऊपर कोई बात करने वाला नहीं है, इनके जुल्म के ऊपर कोई बात नहीं करता। हम करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जंगों के असूल चेंज हो गए। इसराइल की टॉप 10 की 10 दुनिया की बड़ी फौजों में फौज थी, मजबूत फौजों में। जरा गौर कीजिए आज कहां खड़ी है। मोटी चादर थी टैंकों की। इसराइल कहता था इसके ऊपर दुनिया की कोई चीज असर नहीं करती। मैं कसम खा के कहता हूं जब मार रमईता वैज रमईता ये दुआएं पढ़ के मारते थे तो टैंक के अंदर जाकर चद्दर फाड़ कर अंदर जाकर राकेट फटता था। गज्जा टैंकों का कब्रिस्तान बना पड़ा है, उठा के देख लो। मैं नहीं कहता, मैं वो बातें नहीं करता जो नहीं है, मैं वो बातें करता हूं जो रिकॉर्ड पे पड़ी हुई हैं। गज्जा टैंकों का कब्रिस्तान बना पड़ा है। मैंने जिंदगी में कभी यहूदियों को खैमा बस्तियों में नहीं जाते देखा। इनका यहूदियों का एक बहुत बड़ा लिखारी है, अखबारों में लिखता है। उसने लिखा, उसने कहा मुझे दुख है इस बात का कि ये जो यहूदी खैमा बस्तियों में चले गए ये दोबारा कभी अपनी जिंदगियों में अपने घर में नहीं आएंगे, क्योंकि उस जगह पर अब हमास का कब्जा है। ये खैमा बस्तियों में है, इनकी लाशें गिर रही हैं। आपके बेटे टक्कर पे खड़े हैं। आज 58 दिन है। 58 दिनों में अल्लाह की कसम कोई एक दिन दिखा दो, कोई एक दिन, कोई कमजोर बयान। और छोटे छोटे बच्चे, 8 साल का बच्चा शहीद हो रहा है, बिल्कुल शहादत के करीब है। उसका 5 साल का बच्चा, उसका भाई 5 साल का, उसके कान में कलमा पढ़ा रहा है उसको। तरबियत देखें, यह है तरबियत।
और वो तकरीर कर रहा है, बैठा मलबे के ढेर पे सब्र की आयतें सुना रहे। बच्चा तकरीर कर रहा है 8 साल का, कहता क्या हुआ अगर आज हम पर फाके हैं? तो अल्लाह के नबी पर फाके नहीं थे? क्या हुआ अगर आज यहूदियों ने हमारा क्रैकडाउन किया, अल्लाह के नबी का नहीं किया था? कहता क्या हुआ अगर आज इस्लामी दुनिया हमारे साथ नहीं खड़ी? हमारा रब तो हमारे साथ खड़ा है। और इतनी शहादतें, इतनी डेड बॉडियां, कब्रिस्तान, इज्तिमाई कब्रें, 95% मलबे के ढेर, गजा की बिल्डिंगों पर बैठकर यह बातें करना बहुत आसान है, इसका प्रैक्टिकल बड़ा मुश्किल है। बातें मैं और आप भी कर सकते हैं, इसके ऊपर गौर करें। और हमारे करने वाले 2-3 काम है, मैं वो बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूं। बाइकाट करें इनकी सप्लाई लाइन काट दें। $2.4 बिलियन का डेली नुकसान हो रहा है इसराइल को। इसराइल के रिजर्व में जो रिसोर्स पड़े थे वो मार्केट में ले आया है। जंगें पल्ले कुछ नहीं छोड़ती, ये लंबी चलनी है जंग। 58 दिनों में हमास के पास असला खत्म नहीं हुआ, गजा पूरे का पूरा नीचे सुरंगे हैं, लंबी जंग चल रही है। इसके ऊपर बातें मैं स्टेज पे नहीं करता, बाद में मुझसे पूछ लेना, मैं बहुत कुछ आपको बता दूंगा। अगली बात, इनकी सप्लाई लाइन काट दें, रातों को अपने बच्चों को उठाकर मसल्ले पे ले आएं। हम ये तो अपने मुल्क में रह के कर सकते हैं, अपने बीवी बच्चों को ले आए मसल्ले पे, दुआएं करवाएं इनके लिए। आप चल फिर रहे हैं ना, वॉक कर रहे हैं, जिम जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, अपने ज़हन में एक बात रखें, या अल्लाह मैं फ़लस्तीन के लिए अपनी फिटनेस बना रहा हूं, अल्लाह तू मुझे मौका देना, मैं ज़रूर जाऊंगा। ये बात ज़हन में रखना, नफाक से बाहर आ जाएंगे। अगली बात, जिस जगह पे ये हमने चीचावतनी में प्रोग्राम करवाया, कायदीन, जमातों के कायदीन ये कहते हैं कि चीचावतनी की तारीख में हमने प्रोग्राम ऐसा नहीं देखा। हमास के रहनुमा ने गुफ्तगू की, उसने अहलिया ने साहिवाल चीचावतनी का शुक्रिया अदा किया अपनी इस जिद्दोजहद के ऊपर कि जो आप हमारे लिए कर रहे हैं। तो भाइयों, जहां रैलियां प्रोग्राम इनके लिए हो रहे हैं वहां शिरकत ज़रूर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।